Hello dear student, this is Neha, your course teacher, which is Principles of Agronomy, and our course number is EAS 5111. Okay, so I have come up with the new lecture. So our today's topic is the classification of crops. Okay, so in our previous lecture we had discussed the classification of crops in the another following ways, like according to range of cultivation, according to the place of origin, botanical classification, commercial classification, economic or agricultural classification, then the seasonal classification. Okay, so in this lecture we will discuss about the rest four classification, which is seasonal classification based on ontogeny, then according to the important uses, and according to the cultural requirement. Okay, so let us start. Okay, so seasonal classification. So as the name suggests that seasonal classification matlab classification through the according to our season. Okay, so crops are grouped under the season in which their major field duration falls. The Kharif, which is also known as southwest monsoon season. Okay, so the second is Rabi crop, which is post monsoon crop, and the Jaid or summer crop, as well as Jaid and summer crop. Okay, so Kharif or southwestern monsoon season crops are crops grown during June to July to September to October, which require a warm wet weather during the major period of growth and shorter day length of flowering. Okay, such as rice, maize, castor and groundnuts are the Kharif crops. Okay, तो these are the Kharif crop. इनके अलावा भी some black gram, green gram, they also are the Kharif crop. Okay, then next is Rabi crop, which is post monsoon crop, as well as we can say that the winter season crop. Okay, so crop grown during October to November to January to February require cold dry weather for their major growth period and longer day length for flowering, such as wheat, mustard, barley, oats, potato, Bengal gram, barcine, cabbage and cauliflower. So they are Rabi season crop, we can say that. Okay, so Rabi season as well as winter season. Then third one is Jaid or summer crop. So crop grown during February to March to May, June, which requires warm dry weather for growth and longer day length for flowering. An example is black gram, which is also known as urd, and green gram, which is also known as moong, sesame seeds and cowpea. Okay, etc. So these classification is not a universal one. It's only indicate the period when a particular crop is raised. Example is Kharif rice, Kharif maize, Rabi maize, summer pulses and etc. Okay, so ये कहना चाह रहा है कि this is the only the classification of according to our weather. Okay, so this is not the universal, because हम रबी सीजन में भी पैडी का क्रॉप, राइस का क्रॉप लेते हैं, तो that could be a रबी सीजन राइस, we can say that. Okay, सिमिलरली हम खरीफ के सीज़न के अलावा मेज जो है हम वो जायद के सीज़न में लेते हैं, तो दैट कुड बी वी कैन से दैट जायद सीज़न मेज. ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन द वेदर. ओके, सो बेसिकली हम इसे समझने के लिए हमने 3 सीज़न में डिवाइड करा हुआ है. सो खरीफ, रबी एंड जायद सीज़न. ठीक है, तो रबी सीज़न इट मीन्स विंटर सीज़न, जायद मतलब समर सीज़न, और बेसिकली खरीफ सीज़न मीन्स रेनी डेज. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ontogeny. So it is a classification based on the life cycle of plant.
Okay, so annual, biennial, perennial. So as name suggests that annual it means crop plants that complete life cycles within a season of और ईयर, एक साल में जो अपने पूरे लाइफ साइकिल को मीन्स ग्रोइंग मतलब सीड जर्मिनेशन से लेके मैच्योरिटी तक के पूरा वो क्रॉप का सीज़न है या उनका एक लाइफ साइकिल है, वो एक साल में वो कंप्लीट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द एनुअल क्रॉप. ओके, सो दे प्रोड्यूस सीड एंड डाई विद इन द सीजन. मतलब वो क्या होता है, एक सीज़न के अकॉर्डिंगली अपना लाइफ साइकिल उनका चलता है. वो जर्मिनेट करते हैं, पार्ट्स में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है और मैच्योरिटी के बाद वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द एनुअल क्रॉप. ठीक है, तो देयर आर सम एनुअल क्रॉप्स, वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, दे आर एनुअल क्रॉप्स. And the second is biennial crop. Okay, so as the name indicates, biennial it means 2 season. Okay, so plant that have lifespan of 2 consecutive seasons or years. First years या seasons, these plants have purely vegetative growth, usually confined to rosette of leaves. The taproot is often fleshy and serve as a food storage organ. During the second year season, they produce flower stalks from the grown, and after producing seeds, the plant die. मीन्स जो फर्स्ट सीजन में आपका क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है. वेजिटेटिव ग्रोथ इट मीन्स अ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, एंड देन द सेकेंड सीजन में क्या होता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है. ओके, सो दे आर सम एग्जाम्पल फॉर शुगर बीट, चुकंदर. ठीक है, बीट रूट, शकरकंद, कैबेज, रेडिस, कैरेट, दे आर द बाइनियल क्रॉप. एंड द पेरिनियल क्रॉप, so they live for 3 or more years. They may be seed bearing or non seed bearing. So example is sugarcane, napier grasses. So napier grasses is a use for the forage crop. ठीक है, फॉडर पर्पस से हम उसे यूज़ करते हैं. बहुत ही हाईली नाइट्रोजन जो होता है वो नेपियर ग्रास में मिलता है, जो हम एज अ फूड कैटल को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इन जनरल पेरेनियल क्रॉप्स ऑक्यूपाई लैंड फॉर मोर देन 30 मंथ्स. ठीक है, तो वो 30 महीने से ज़्यादा जो है तो वो हमें दिखाई पड़ते हैं. तो इट कुड बी अ नेपियर ग्रास एंड अनदर फ्रूट क्रॉप्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेरेनियल क्रॉप. ठीक है, एंड द 8th इज अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट यूजेस. So though plants are useful in many ways, only certain uses are given below. So catch crop, it is also known as contingent crop. Okay, so contingent crops are those crops cultivated to catch the forthcoming season. It replaces the main crop that has failed due to biotic or climatic management or hazards, weather hazards. Okay, so generally they are of very short duration, quick growing, harvestable or unstable at any time of their field duration, and adaptable to the season, soil and management practices. They provide feed, check weed growth, conserve soil, utilize added fertilizer and moisture. Example is green gram, black gram, cowpea, onion, coriander and bajra. ओके, सो दीज आर द कैच क्रॉप. मतलब जल्दी से उग जाना और जल्दी से अपना आउटपुट दे देना, जल्दी से प्रोडक्शन दे देना, इस टाइप के क्रॉप को हम कैच क्रॉप बोलते हैं. सपोज किसी वेदर हजार्ड्स की वजह से या बायोटिक स्ट्रेस आने की वजह से. ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस मतलब किसी इंसेक्ट पेस्ट का हमें अटैक हो गया या कोई वुंड्स लग गए. ठीक है, किसी कारणवश मैकेनाइजेशन के समय किसी हमारे क्रॉप को वुंडिंग हो गई, मतलब घाव हो गया या छिल गया या डैमेज हो गया. उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता. ठीक है, तो उस सीज़न में उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली वो क्रॉप डैमेज हो गया. डैमेज होने के कारण उसका प्रोडक्शन हमें अच्छा नहीं मिल पाता. तो उस कंडीशन में हम ये कैच क्रॉप लेते हैं, क्योंकि ये कैच क्रॉप उस सीज़न में अगर हम मिड सीज़न में भी लगाते हैं तो वो अपना लाइफ साइकिल जो है बहुत ही इंस्टेंट पूरा कर लेता है. ठीक है, तो ये हम एडवर्स कंडीशन में जब वेदर हजार्ड्स या
अनदर बायोटिक स्ट्रेस जब प्लांट्स में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम क्रॉप लेते हैं जो हमें जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्शन दे दे, या जिनका वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो, ठीक है, तो उस टाइप के क्रॉप को इस कैटेगरी में हमने रखा हुआ है, ठीक। एंड देन आफ्टर रिस्टोरेटिव क्रॉप आर, ठीक है, रिस्टोरेटिव क्रॉप मतलब are those crops which provide a good yield along with enrichment or restoration of soil fertility or amelioration of the soil. They fix atmospheric nitrogen in root nodules, shade their leaves during ripening and thus restore soil conditions, which is legumes, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दैट लेग्यूम्स में जो होता है, ठीक है, जो लेग्यूम्स मतलब जो पल्सेस हमारे क्रॉप्स हैं, पल्सेस मतलब जो दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, तो जो दाल वाली फसलें हैं उनके जो सेमी रूट सिस्टम में एक क्या होता है, एक नोड्यूल पाया जाता है, ठीक है, तो उस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सॉइल के जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे सॉइल फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्रॉप हम जब उगाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन के साथ साथ, ठीक है, सॉइल को एनरिच करते हैं, मतलब सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, या सॉइल को क्या करते हैं, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनकी पोरोसिटी फर्टिलिटी को वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इस तो रीस्टोरेटिव क्रॉप मतलब वो क्या करते हैं, रीस्टोरेज करने का काम करते हैं, मतलब रीस्टोरेज इट मीन्स सॉइल के स्ट्रक्चर को, बेसिकली सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधारने की, ठीक है, रिक्लेमेंट करने का काम करते हैं। तो डेट कुड बी अ रीस्टोरेटिव क्रॉप, ठीक है। सो एंड देन एग्जॉस्टिव क्रॉप, so they are those crop plants which on growing leave the field exhausted because of a more aggressive nature, which is gingerly, brinjal, linseed, sunflower. They are comes under the category of this exhaustive crop, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा इनको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है ना, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन पे ये अग्रेसिवली रिएक्ट करता है ये प्लांट जो है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसे एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। देन पैरा क्रॉप विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल क्रॉप, so they are those who crop plants which are shown a few days or weeks before the harvest of a standing mature crop to utilize the residual moisture without preparatory tillage. The standing crop and the latter shown, which is para crop, become simultaneously for a short period. For example, rice, fallow, pulses, breadcrumb, lettuce, lentil, etc. So para crop is succession by constituent relay cropping, मतलब हम अपने मेन क्रॉप के साथ में, ठीक है, हम अपने मेन क्रॉप के साथ में इन्हें भी ले सकते हैं, किन्हें ले सकते हैं, पैरा क्रॉप के जरिए हम जो है राइस के साथ में हम पल्सेस क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, या हम पल्सेस के साथ में और मेड़ वगैरह जो होते हैं उसमें हम पल्सेस क्रॉप रहते हैं। तो इस टाइप की जो सिस्टम हम अपनाते हैं, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम हम जो फॉलो करते हैं उसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द रिले क्रॉपिंग इन डिटेल इन आवर क्रॉपिंग सिस्टम चैप्टर, ओके। So the next is smoother crop. So smoother crop are those crop plant which are able to smoother or suppress the weed growth by providing suffocation and obstruction incidence radiation through their dense foliage development due to quick growing ability with heavy tailoring or branching planophilic or procumbent or training habits. Example is barley and mustard एंड काउपी, ठीक है। तो ये स्मूथर क्रॉप है, ठीक है, बहुत ही स्मूथली ये जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में, और ये क्या होते हैं, सप्रेस करते हैं, वीट के ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वीट मतलब क्या है, मैंने बताया था पहले आपको, अ प्लांट विच इज़ नॉट वांटेड दैट पर्टिकुलर एरिया, दिस इज़ नॉट द अनडिजायरेबल बट इन द
scientific definition, we can say that the undesirable, a plant which is undesirable and unwanted, which are grown in cropped area, ठीक है, which are grown between crops, our crops, that is called the weed. But a plant that is not wanted that particular area is called weed, ठीक है. एक ऐसा पौधा जो हम इस पर्टिकुलर एरिया में या फील्ड में हमें नहीं चाहिए पर वो उग आया है. इट कुड बी असेंशियल, इट कुड बी नॉन एसेंशियल, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टी. बट वो उग आया है उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में. सपोज हमें चाहिए वीट का क्रॉप, ठीक है, और हम किसी कंडीशन में, या तो वो सीड मिक्सिंग की वजह से या किसी रेसिडुअल इफेक्ट की वजह से जो है वो मस्टर्ड उगाया एक दो पौधा, तो दैट कुड बी अ मस्टर्ड वीट प्लांट, ठीक है, हम लोग उसको वीट प्लांट कहेंगे. बट इंडिविजुअली अगर हम मस्टर्ड का ग्रोइंग करते हैं, हम मस्टर्ड की क्रॉप उगाते हैं, दैट इज़ नॉट द वीट क्रॉप, ठीक है. तो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज cover crop. So as a name suggests that cover crops are those crop plants which are able to protect the soil surface from erosion, which is wind, water or both, through their ground covering foliage and or root mats. So it work as a root mats. Okay, so that could be a groundnut, black gram, marvel grass, sweet potato, ठीक है. दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कवर क्रॉप. ये क्रॉप जो है वो ग्राउंड सरफेस एरिया को विंड इरोजन या सॉइल इरोजन से बचाने का काम करते हैं. ये फुल्ली रूट मैट की तरह स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है, स्प्रेड हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है, चाहे वो विंड के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो. सॉइल इरोजन जो होता है उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है. एंड द नर्स क्रॉप. Second is nurse crop. So a companion crop which nourishes the main crop by way of nitrogen fixation and or adding the organic matter into the soil. Example is cowpea intercrop with cereals. ठीक है, मतलब अगर आप दलहनी फसलों को सीरियल्स के साथ उगाएंगे तो वो नाइट्रोजन के जो रिक्वायरमेंट है या नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में उसको क्या करता है, बैलेंस करता है. क्यों? क्योंकि जो हमारे लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं. तो जब हम दो क्रॉप को, सपोज हमने एक सीरियल क्रॉप और उसके साथ में हमने लेग्यूम क्रॉप का इंटर क्रॉप करा, ठीक है, मतलब रो टू रो, एक रो में हमने सीरियल के क्रॉप लगाए और दूसरे रो में हमने लेग्यूम लिया, तो लेग्यूम जो है वो उसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. तो वो क्या करता है, उसके जो रेस्ट अमाउंट में बचे हुए नाइट्रोजन होते हैं, फिक्स्ड जो नाइट्रोजन होते हैं जो वो सॉइल में फिक्स करा हुआ होता है, उसको क्या होता है, सीरियल को प्रोवाइड कराता है, ठीक है. तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है. तो ये जो लेग्यूम क्रॉप है वो हमारे सॉइल के लिए बहुत एसेंशियल क्रॉप है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नर्स क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे मेन क्रॉप को क्या करें, उनका टेक केयर करें, ठीक है. देन द गॉड एंड बैरियर क्रॉप्स. सो दे आर द क्रॉप प्लांट्स विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेपेजिंग और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड thus prevent crop damage. Main crop in the center surrounded by hardy or thorny crop. Example is mesta around sugarcane, sorghum around cotton, safflower around gram, ठीक है. सो बेसिकली ट्रैप्सिंग, देयर आर सम वर्ड ट्रैप्सिंग, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज़ हाईलाइट दैट वर्ड. सो ट्रैप्सिंग हम कह सकते हैं कि फ्लू एंड कॉमिटेड एज द पर्सन. जैसे मतलब अगर वो आपका, सपोज कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं है, ठीक है, सो आप उसको उस प्रॉपर्टी पे अनाधिकार करेंगे, आपका अधिकार नहीं है उसमें,
ठीक है, यू हैव नो राइट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इस वजह से ट्रैप्सिंग का मतलब यहाँ पे है क्रॉप फ्रॉम ट्रैप्सिंग और रेस्ट्रिक्ट द स्पीड, मतलब वो किसी अनर्गल का पौधा है जो वहाँ उगना चाहता है, तो उस एज ए वो सोल्जर के टाइप काम करता है, प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप, बेसिकली दे वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेन क्रॉप। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रैप्सिंग का हमने यूज़ करा है, तो ये क्या है कि ये किसी स्पेशली एक ऐसा राइट है जो आप उस पर्टिकुलर के लिए एरिया के लिए आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप जो मेन क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके का जो गार्ड से हमको समझ आ जा रहा है कि वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम मेन क्रॉप के जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में हम थ्रोनी टाइप के, मतलब कटीले वाले पौधों में या ऐसे बड़े बड़े हम क्रॉप लगा देते हैं जो सोल्जर क्रॉप का काम करे। ठीक है, गार्ड क्रॉप का काम करे, एज अ बैरियर का काम करे। ठीक है, क्यों कि वो किसी और अलग टाइप के जो प्लांट हैं उनको उगाने मत दे। तो इस कंडीशन में जो हम क्रॉप लगाते हैं या इस सिचुएशन में या इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द गार्ड क्रॉप और बैरियर क्रॉप। ओके, देन ट्रैप क्रॉप। ठीक है, ट्रैप मतलब समझ आ जा रहा है हमें, ट्रैप इट मीन्स जकड़ना, ठीक है, या पकड़ना, घेरा लगा लेना। सो द ट्रैप क्रॉप और दोज क्रॉप प्लांट्स ग्रोन टू ट्रैप सॉइल बॉर्न हार्मफुल पैरासाइट वीड्स, फॉर एग्जाम्पल Orobanche and Striga are trapped by the Solanus and sorghum crops. So Orobanche and Striga is a weed. ठीक है, ये वीड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये एक खरपतवार का पौधा है। ठीक है, तो दे आर बॉर्न हार्मफुल पैरासाइट वीड। फॉर एग्जाम्पल Orobanche and Striga are trapped by Solanaceous and sorghum crop respectively, means that Solanaceous में Orobanche होता है और सोरगम क्रॉप जो है उसमें स्ट्रीगा वीड्स जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। नीमेटोड्स आर ट्रैप्ड बाय सोलनेसियस क्रॉप एंड कैस्टर इन कॉटन ग्राउंड नट एक्ट एज क्रॉप फॉर आर्मी वॉर्म पेस्ट। ठीक है, तो ये एक जकड़ के रखने वाला काम करते हैं एक मेन क्रॉप को बेसिकली। And the next is augmenting crop are those subcrops sown to supplement the yield of main crop, mustard or cabbage with बरसीम to augment the forage yield of बरसीम। ठीक है, तो जब हम दो पर्पस के लिए, ठीक है, जब हम दो पर्पस के लिए हम फील्ड में क्रॉपिंग करते हैं या क्रॉप्स किसी क्रॉप को हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो होती है पर्पसली इट मीन्स कि एक हमारा हो सकता है डोमेस्टिक पर्पस से हो जो हम एज अ हम फूड यूज़ करें, और एक हो सकता है कि एक फॉडर के रूप में यूज़ करें। ठीक है, हम चारा के रूप में करें। तो इस टाइप के जब क्रॉपिंग सिस्टम हम करते हैं और जो वो क्रॉप्स वहाँ पे उगाते हैं हम उस क्रॉप को हम एग्यूमेंटिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, so example is very much, so always remember, okay, so you need to remember this all examples from that particular cropping classification of crops. Okay, so LA crops are those, the next is LA crop. LA crops are those arable crop which are grown in LAs formed by trees or shrubs established mainly to hasten soil fertility, restoration, enhance soil productivity and reduce soil erosion. They are generally of non-training with shade of tolerance capacity, for example growing pulses in between the rows of casuarina. ठीक है, so there are the very important term, I think you are not aware for this term, particular term, which is tolerance. Okay, so tolerance, we can define that tolerance a capacity. ठीक है, a capacity to endure pain, we can say that a capacity to endure pain or hardship, endures the some kind of stamina to against the adverse condition of weather as well as soil also. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द टॉलरेंस कैपेसिटी फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। अगर वो किसी एडवर्स कंडीशन में, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो या वो वेदर से रिलेटेड स्ट्रेस हो, ड्रॉट आ गया हो, फ्लड्स हो, तो उसके अगेंस्ट अगर अगर क्रॉप स्टेमिना या एक कैपेसिटी दिखाए, एंड्योरमेंस दिखाए, तो उस कंडीशन पे या उस सिचुएशन को हम टॉलरेंस वैरायटी या टॉलरेंस क्रॉप बोलते हैं।
ठीक है, जो टॉलरेट कर ले एडवर्स कंडीशन को भी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि पल्सेस जो हैं उनके बीच में ये कैस्यूरेनिया जो है वो एक टॉलरेंट वैरायटी है जो क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है सिचुएशन को। ठीक है, ओके। सो ना 9th इज अकॉर्डिंग टू कल्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप. So certain group of plant is alike in cultural requirements due to their similar agrobotanical or morpho-agronomical characters. Okay, so there are some cultural requirement. So first is according to cultural requirement we have 10 classification which they are very important. Okay, so please listen very carefully. So first one is according to suitability of topo sequence. ठीक है, so first is crop. They have further divided. We have 10 classification under this category of cultural requirement, and the first one is according to suitability of topo sequence. So first is crop grown on upland, leveled evaluated land with drain all around a unbundled level land with drains or drops. ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट, देयर आर नॉट रॉकेट साइंस. ठीक है, बहुत ही इजी सा है, जो लिखा हुआ है वही आपको समझना है. ठीक है, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर जो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होगा उसको मैं डील कर दूँगी. ओके, सो क्रॉप दैट कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्टैग्नेशन कम अंडर दिस ग्रुप. सो एग्जाम्पल इज रेड ग्राम, ग्राउंडनट, मेज, sorghum, cotton, sesamum, napier, etc. Crops that require sufficient soil moisture but cannot tolerate water stagnation. The example is potato, sugarcane, upland rice, ragi, wheat, black gram and bengal gram. ठीक है, सो ये जो है वो क्या होता है, अपलैंड लेवल में, अपलैंड एरिया में जो है हम जब सुटेबिलिटी के हिसाब से जो क्रॉप उगाते हैं बेसिकली हमें उसके बारे में बताया हुआ है और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है, आपको याद करना है, ये याद रखना है आपको. ठीक है, द सेकेंड इज क्रॉप ग्रोन ऑन लो लैंड. सिमिलरली जैसे अपलैंड में हमने लगाया, सिमिलरली हम वैसे लो लैंड में लगाएंगे. ओके, सो दीज लैंड्स आर प्रोवाइडेड विद decades or burns all around to stagnant water, मतलब रुका हुआ पानी. crop that requires abundant supply of water and withstand prolonged waterlogged conditions. Example is rice, dhecha. So dhecha is a green manure. ठीक है, dhecha is a green manure crop and the paragrass is also the green manure crop and the jute is fibrous crop. ठीक है, the next is according to source of water. So first is irrigated crop and not irrigated crop or rain fed crop. Okay, so in this category we have two classification which is irrigated and rain fed crop. Okay, so this is also the very important classification, you need to remember this. Let us see what is irrigated crop. So the crop cultivation primarily depends on the irrigation water for a part entire growth period of the crop. All crop irrespective seasons are possible to be raised in this category. ठीक है, तो दिस इज द क्रॉप कल्टीवेशन, जो ऐसे सिचुएशन पे जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है. ठीक है, उस टाइप के जब हम क्रॉप वहाँ पे लेते हैं, दैट कुड बी इरिगेटेड क्रॉप. Similarly, rain-fed crop is what the crop cultivation entirely depend upon the rainfall receipt. So basically, in India, all crops are about a rain-fed crop. ठीक है, because the irrigation facility is not in everywhere. We can say not say, it is a reality. हर जगह इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. सो बेसिकली अवर इंडिया इज़ अ बेसिकली द रेनफेड एरिया. ठीक है, सो रेनफेड क्रॉप मीन्स व्हाट? सो रेनफेड क्रॉप इज़ व्हाट द काइंड ऑफ क्रॉप विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. ओके, जो बारिश में पूरा डिपेंड हो, दैट इज़ कॉल्ड द रेनफेड क्रॉप. ओके, सो बेसिकली द पैडी. ठीक है, हमारे साइड में जो फार्मर्स हैं वो जो भी धान की खेती करते हैं वो खरीफ सीज़न में करते हैं, जब बारिश आती है तब खेती करते हैं. ठीक है, तो ये जो है वो रेनफेड एरिया या रेनफेड क्रॉप कहलाएगा.
ठीक है. तो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द पर्टिकुलर एरिया. Okay, their crops are shown like that. And the next is according to moisture availability, the soil. So we have two classification, which is wetland and dry land. So wetland is what? The soil moisture is allowed to occupy both macro and micro pores. Anaerobic fill condition prevails here. Crops suitable are those crops which tolerate water stagnation. Example is green manures like Sesbania group, grasses, etc. And the dry land is wetland से हमें समझ आ रहा है गीली जगह, and dry land से भी हमें as a name indicate that dry means dry area. So the soil moisture is allowed only the microspores. Macrospores are filled with air. ठीक है. तो dry in this section, in this category, the soil moisture is allowed only the micropores, means ठीक है, and the macropores are filled with air. That's why the situation is created as a dry. Okay, so magnitude of soil moisture varies according to the crops like maize, highly sensitive to excess moisture and drought. Crops tolerant to drought and temporary stagnation, sorghum, are cultivated in this type of field condition. Okay, so these are two classification, which is wetland and dry land, and this is comes under the category of moisture availability in soil. Okay, so I oftenly said that this is very important chapter. You need to remember this chapter, because every time exams में frequently ये questions आपको पूछेंगे, what is the kind of classification, and that individual kind of classification कभी पूछ लिया जाता है कि according to the cultural requirement कितने टाइप में हमने क्लासीफाई करा हुआ है, कभी वेटलैंड और ड्राई लैंड ही पूछ लेगा. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, एनीवेज, the next is according to the suitability of the textural group of soil. So crops suitable to sandy loam. Okay, so it's depend on the soil which is sorghum, bajra, green grams, sunflower, potato, onion, carrot. ठीक है, ये जो है सैंडी लोम सॉइल में उगते हैं. एंड द क्रॉप सुटेबल टू सिल्ट लोम इन ए मीडियम सॉइल विच इज जूट, शुगर केन, मेज, कॉटन, मस्टर्ड, tobacco, bengal gram, red gram, cowpea, etc. Okay, so they are grown in silt loam soil. And the crop suitable to clay soil, which is rice, wheat, barley, linseed, lentil, paragrass, canony grass, marvel grass, they are grown in clay loam soil. Okay. And the next is according to the tolerance of problem soil. So we have 5 category. Tolerant to acidic soil. So as I told you that what is tolerant, the capacity to endure pain or hardship, it is called the tolerant. Okay, so tolerant to acidic soil, जो acidic soil में अपने आप को stand up करके रख पाएं. ठीक है, this is called the tolerance to acidic soil. तो we have example which is wheat, rice and potato and mustard. And the tolerant to saline soil, which is chilies, cooker beets, wheat, sorghum, bajra, cluster bean, barley, etc. Okay, and then tolerant to alkaline sodic soil, which is barley, cotton, bengal gram, berseem, sunflower, maize. Okay, so these are very important crop. Okay, so you have need to remember that they are comes which category. You need to know, and you need to understand first what is the acidic soil, what is the alkaline soil, and what kind of crop, the wetland is what. So the basic terminology is very important in our agronomy section. Okay, so listen very carefully. And according to tillage requirement, so we have 2 category, arable crops and non-arable crops. तो इन एरेबल क्रॉप्स रिक्वायर प्रिपरेटरी टीलेज, मतलब हमें टीलेज ऑपरेशन करने पड़ेंगे. ठीक है, कल्टीवेटर चलाना पड़ेगा, रोटावेटर चलाना पड़ेगा. दीज आर द प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स. So example is potato, tobacco, rice, maize. They are comes under the category of arable crops. And the non-arable crops may not require
प्रिपरेटरी कल्टीवेशन टीलेज, मतलब ये 0 टीलेज में हम उगा सकते हैं, जैसे पैराग्रास हो गया, लेथाइरस हो गया, ठीक है, लिंसिड हो गया। ये क्या होता है, ये जो है 0 टीलेज में भी हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। 0 टीलेज मतलब क्या होता है कि हम इसमें कोई भी प्लॉइंग ना करें, हम सीधे खेत में जो सीड्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर दें या सीधे हम उसकी सोइंग कर दें। ओके, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द 0 टीलेज क्रॉप। देन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम, तो शैलो रूटेड क्रॉप मतलब जिनके जो रूट्स हैं वो it is spread out in the upper surface of the soil, it is called the shallow rooted crop, ठीक है। So in this category rice, potato and onions are the shallow rooted crop. Then moderate deep rooted, so in this category wheat, groundnut, castor and tobacco, ठीक है, ये जो है मॉडरेटली डीप रूटेड क्रॉप होते हैं, ठीक है, मतलब अपर सरफेस में नहीं, सब सरफेस में, सब सरफेस एरिया में इनके रूट्स जो हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। देन द डीप रूटेड, सो दिस कैटेगरी वी हैव मेज, कॉटन एंड शोरगम, दे आर डीप रूटेड क्रॉप। And the very deep rooted crop we have sugarcane, safflower, lucerne and red gram. Red gram is also known as pigeon pea. Okay, so they are very deep rooted crop. Okay, and the last is according to the tolerance to hazardous weather condition, which is frost tolerance. Frost is a ओला, जिसे हम हिंदी में ओला कहते हैं। ओके, सो जब वाटर ड्रॉपलेट्स इज अ सैचुरेटेड कंडीशन में, इट इज रीच्ड आउट द सैचुरेटेड कंडीशन अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैन द फ्रॉस्ट इज फॉर्म। ओके, सो फ्रॉस्ट मतलब तब उस कंडीशन में जो है जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, इट कुड बी इट इज़ it could be cooled about the situation and saturated and reach out the 0 degree centigrade, then after the frost is formed, we can say that, or frost is occurs like that, And the cold tolerance is comes under the category of potato, cabbage and mustard, and the drought tolerance is a bajra, jowar, barley, safflower and castor. They all are a drought tolerance crop. So this is very important, बिकॉज कभी वाइवा वगैरह में आपसे जो एक्सटर्नल है वो पूछ लेते हैं कि ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप बताओ, ठीक है, या फ्रॉस्ट टॉलरेंस क्रॉप बताओ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, ओके, अगेन द अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सोइंग। Okay, so according to method of sowing, we have 3 categories: direct seeded crop, planted crop, transplanted crop. Okay, so direct seeded crop, name indicates that direct sown is implement for that particular crop. So where the seeds are sown directly, either dry or sprouted upland rice, wheat, jowar, bajra, groundnut, etc. The planted crop is where plant parts are planted directly, which is sugar cane, potato, sweet potato, Napier grass, etc. And the transplanted crop where seedlings are raised in the nursery, pulled out, are planted in the field, rice, ragi, bajra, tobacco, barley, onion, brinjal, they are transplanted crop. ठीक है, तो सीडेड मतलब सीधे सीड आपको शोन करने हैं फील्ड पे, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सीडेड क्रॉप। प्लांटेड क्रॉप इट मीन्स कि आपको एक प्लांटेशन करना है, दैट इज कॉल्ड द प्लांटेड क्रॉप, कि आप प्लांट लगा रहे हैं सीधा, ठीक है, नर्सरी से आपने कोई पौधा लाया, आपने प्लांटेशन करा। एंड द ट्रांसप्लांटेड क्रॉप मतलब पहले आपने सीड्स को किसी नर्सरी में ग्रोन करा, ठीक है, और जब उसका साइज 6 सेंटीमीटर टू 9 to 10 सेंटीमीटर जब उस कंडीशन पे वो पहुंचता है, उसके बाद आप उसे नर्सरी से प्लग आउट करते हैं और फिर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटेड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द इंटर-टिलेज रिक्वायरमेंट, स्पेशली अर्थिंग अप, ठीक है, स्पेशली अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, तो अर्थिंग अप जो ये टर्म है वो पोटैटो के कल्टीवेशन से आया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक्सटर्नल अर्थिंग अप जो टर्म्स है वो यूज़ करके पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द अर्थिंग अप terms, so this is comes from the potato cultivation. So integrated crops, potato interned crop is potato, sweet potato, groundnut, maize, sugarcane and turmeric, ठीक है, and non interned crop which is fodder, sorghum,
Dinanath grass, paragrass. So these are the grasses, these are the green manure. This is used for as a domestic purpose, domestic fodder purpose, okay, for our cattle. Then according to length of field duration of crop, okay, so we have 5 category: very short duration crop, short duration crop, medium duration crop, long duration crop, very long duration crop. Okay, so there are some ranges according to the crop. So very short duration crop up to 75 days. So, okay, so in this category all pulses are comes out this category. Then the short duration crop, so 75 to 100 days ranges are required for that duration crop. So in this category we have sunflower, cauliflower, upland rice are comes under this category. And the medium duration, it means the 100 to 125 days. And this category, for this category we have wheat, jowar, bajra, groundnut, sesame and jute. After that the long duration, if it is 125 to 150, mustard, tobacco, cotton, they are long duration. Okay, and the very long duration is sugarcane, because sugarcane is about sugarcane cultivation or production is takes sometime 18 month, more than 18 month. That is that's why this is comes under the category very long duration crop. According to the method of the harvesting, so which was a wrapping. Okay, so what is the wrapping? Wrapping is a very basic term. We can say that to cut and collect a crop basically. ओके, सो रीपिंग और रीपर जो आता है, हम जो रीपर यूज़ करते हैं, बेसिकली दिस इज़ द हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट. एंड बेसिकली द रीपिंग मीन्स टू कट एंड कलेक्ट द क्रॉप. okay, so particularly this is used for our rice harvesting. okay, so reaping in this category, rice and wheats are comes out this category. And the uprooting by pulling मतलब जो रूट्स हैं उनको बाहर की तरफ पुल करके निकालना है, खींच के निकालना है. तो दे आर बेंगल ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, रैपसेड. देन अपरूटिंग बाय डिगिंग, मतलब उनके रूट को बाहर डिगिंग के थ्रू निकालना है, मतलब गड्ढा खोदने के थ्रू निकालना है. तो इन दिस कैटेगरी वी हैव पोटैटो, मतलब दे आर काइंड्स ऑफ ट्यूबर क्रॉप, वी कैन से दैट. जितने भी कंद वाले फसलें हैं, they are comes under this category of uprooting and digging. Peaking, which is cotton, vegetable, brinjal, भिंडी, they are comes under this category peaking, मतलब हम सीधे हाथ से तोड़ लेते हैं, वो होता है peaking. Then after priming, which is tobacco, ठीक है, हम एक बंडल तैयार करते हैं, बंचेस तैयार करते हैं, that is called the priming. This is used for the tobacco crop. Then cutting is a very simple, कट करना होता है हमें और हार्वेस्ट करता है. थ्रू दी कटिंग वी कैन हार्वेस्ट दैट पर्टिकुलर परसीम, नेपियर, एमेरंथस क्रॉप्स. एंड द ग्रेजिंग इट मीन्स चारा. ठीक है, चारा जो होता है, मतलब पशुओं को हम चारागाह जो बोलते हैं ना, ग्रेजिंग करना, तो उस तरीके के जो जितने भी ग्रासेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग रिक्वायरमेंट, ओके, सो क्यूरिंग बेसिकली वी कैन यूज़ अ टोबैको, मतलब सुखाना, टोबैको के लीव्स जो होते हैं उसको ड्राई करना. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो टोबैको में करते हैं और मस्टर्ड में करते हैं, क्योर करते हैं. देन स्ट्रिपिंग, सो स्ट्रिपिंग इज बेसिकली स्ट्रिपिंग इट मीन्स वी कैन से दैट समथिंग, रिमूविंग समथिंग लाइक सो स्ट्रिपिंग इन दिस कैटेगरी, जूट एंड सन हेम्प में हम जो कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, समथिंग रिमूव करते हैं. ठीक है, तो वो जो है वो स्ट्रिपिंग प्रोसेस होता है. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट. तो जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो क्या है, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी. सो शेलिंग मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हम ये ग्राउंडनट्स के लिए यूज़ करते हैं. जो ग्राउंडनट्स का बाहरी कवर होता है, आउटर जो कवर होता है, उसको हम शेल कहते हैं. ठीक है, और जब हम उसको रिमूव करके जब ग्राउंडनट के जो हम नट्स बाहर निकालते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शेलिंग. And the geening is process in which some process of removing of seeds and seeds and fibers from the cotton, we can say that. So basically, in another words, we can say geening means separating seeds and small objects to fibers from cotton.
So that is called gening. मतलब फाइबर्स जो हैं या फाइबर्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट करना कॉटन से, दैट इज़ कॉल्ड द gening. Then the seasoning is turmeric and chili, and the gardening and sorting, तो जितने भी वेजिटेबल्स क्रॉप हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे. Then based on crop growing soil condition, so there are sandy soil, rock surface, rock crack, तो इनकी कैटेगरी में जो भी आते हैं वो सारे क्रॉप्स के यहाँ पे नाम हैं. ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि सैंडी सॉइल, ठीक है, तो सैंडी सॉइल को हम पैसामोफाइट्स कहते हैं. या हम रॉक सरफेस हैं, जो चट्टान वाले सरफेस पे उगने वाले पौधे हैं, जैसे फर्न्स वगैरह हैं जो कम वाटर रिक्वायरमेंट पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो जो हैं उनको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं. ठीक है, तो लिथोफाइट्स इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट द रॉक सरफेस टाइप्स ऑफ क्रॉप. वैसे ही हम बोलते हैं चेस्मोफाइट्स बोलते हैं जो रॉक क्रैक में उगते हैं, है ना. जैसे पोटैटो जो है वो मिट्टी जब क्रैक हो जाता है, इस कंडीशन में उसको पानी की आवश्यकता होती है. इतनी पानी की दलदली होने के बाद जब वो एकदम सूख जाए और जब मिट्टी क्रैक पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में हम पोटैटो की अच्छी कल्टीवेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो वैसे ही हमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है हर एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड रिमेंबर दिस नेक्स्ट. Okay, and the last is based on climatic conditions. So tropical crop, subtropical crop, temperate crop and polar crop. So tropical crop is a basically warm season में जो उगते हैं उसको हम कहते हैं tropical crop. तो कोकोनट और शुगर केन है. The subtropical is a normal season पे जो उगते हैं. ठीक है, warm and dry condition या warm and humid condition जिनको चाहिए रहती है, so they are subtropical crop. And this category rice and cotton are subtropical crop. Then the temperate crop मतलब जिनको एक कूल सीज़न की आवश्यकता होती है. ठीक है, कूल सीज़न रिक्वायरमेंट होता है, तो wheat and barley they are comes under the category of temperate crop. ठीक है, जिनको एक विंटर सीजन में ये उगते हैं, इनको बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. एंड पोलर क्रॉप, सो पोलर क्रॉप में ऑल पाइन्स मतलब जितने थ्रोनी वाले पौधे हैं या क्रॉप्स हैं वो जो हैं वो पोलर क्रॉप के कैटेगरी में आते हैं. एंड इनके अलावा पॉस्चर ग्रासेस मतलब जो चारागाह वाले जगह में जो ग्रासेस उगते हैं, दे ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी विच इज़ पोलर क्रॉप्स. ओके, सो ultimately and finally the classification of crops are end. Okay, so in our next lecture we will discuss another topic of agronomy. So this is enough for today. I hope you all got the sense. Okay, so thank you very much, and till then be safe, take care. Thank you.